We have Yes, 10 ma'am. objectives of insurance, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, we have covered all the objectives during the last lecture. Risk sharing, it is a corporate device. People are urged to invest, and then it provides economic security, monetary security, we can say, or it can give us economic development, right? It is towards country's point of view, economic development. And we have also covered capital formation is also an objective, because capital is blocked with so many people. Those who don't save, the capital is blocked with them, and therefore that capital is not used for productive purpose. And the purpose of insurance is to form the capital, is to use the capital in the productive purpose, and to minimize the capital which is blocked in nature. Okay, so particularly that is known as capital block formation. And with the help of capital formation, capital stock in the country is increased. Capital stock means capital assets, buildings, plant and machinery, and likewise. Okay, the next topic that we are going to cover is type of insurance. See, types of insurance mean we have different types of insurance that we can opt for. We have life insurance, we have home. We see, actually there are two types of insurance. There are two types of insurance. What? Life and general. Two type of companies can be there. One can give you one that can give you life insurance policies, and one that can give you general insurance policies. The one which can give you life insurance policies will be called as life insurance companies, and the one that gives you general insurance policies will be known as general insurance companies. Okay. Now, everything which is general is also known as non-life insurance. See, that can be asked in MCQs also. Anything, any company which provides you home insurance, health insurance, property insurance, that means they are not giving you policies related to your life. So, these are known as general insurance, are also known as non-life insurance, non-life. Okay, so there are actually two types of insurance. One life and other one is non-life. We can call it as general insurance also. Non-life can also be called as general insurance. Okay, is it clear everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. So here they don't write as life and non-life. I don't know why, but everywhere it is written life and non-life. And then in the general, in the non-life, they have given the partitions like home insurance, auto, whatever is non-life, whatever is not giving you life insurance policy will automatically be general insurance policy. So you can just write, if I would have drawn it on the board, तो मैं कैसे बनाती हूँ उसको देखो. Types of insurance, I would have taken one arrow here and the other arrow here. One arrow on the left hand side and other arrow on the right hand side. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा होता लाइफ इंश्योरेंस और राइट हैंड साइड में लिखा होता जनरल इंश्योरेंस. ओके, सो अब जनरल इंश्योरेंस के नीचे बहुत सारे आते हैं. कौन से? होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, everything, every type of these type of insurance comes under general insurance. So let us see one by one. We already know what is life insurance. We have already discussed previously in this chapter only. So if it is given as types of, let us discuss it very quickly. Now, I hope you know what is life insurance. Life insurance related to the life of person. And you can take a life insurance of your family also. Okay, group insurance can also be taken, that is known as family insurance. Okay, and in that
In that, specifically, company can provide you income to the insured. Income to the insured means maybe if somebody is dead, okay, and that person has taken life insurance policy. So the amount of the insurance policy will be given to his family. Okay, so amount can provide related to family's income, burial, funeral, and other final expenses. That a life insurance policy can provide these expenses also. When we bury person, no, when we put on fire at the last moment, जब हम वो क्रीमेशन प्रोसेस में लेके जाते हैं, जैसे हिंदू और अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से होता है, धर्म के हिसाब से वो हम लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। हिंदू उन्हें जला देते हैं और मुस्लिम्स उन्हें बरी कर देते हैं। ठीक है, तो जो जो उनके प्रोसेस होते हैं, उनका जो खर्चा होता है ना, वो भी कंपनी आपको भर के देती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर प्रोवाइड किया गया आपकी पॉलिसी में तो, अदरवाइज आपको पूरा वो एक्सपेंसेस अगर नहीं भर के देगा तो एटलीस्ट आपको जो पॉलिसी का अमाउंट है, लमसम अमाउंट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ बोनस is also paid at the time of either maturity or on the death, whichever is earlier. That is known as life insurance. So life insurance policy often allow the option of having the proceeds. Option of having the proceeds means to settle the claim, to have the claim, to have the amount of the policy either on the death, ये देखो लिखा हुआ है, paid to the beneficiary, whoever will be the beneficiary. See, if I am alive, I will be the beneficiary because I will be taking my amount. No, it is my insurance policy. And if I'm alive after 20 years of policy and the maturity date is also 20 years, therefore the I will be receiving the amount and I will be the beneficiary. Am I clear? But example, suppose take an example of I am dead now. I am no more. So my family will receive whole amount. No, that lump sum amount. So my family will become beneficiary in that case. Okay. So uh, insurance policies में क्या होता है? There is an option which is available of having proceeds paid to the beneficiary either means either or. There are two situations. Either in the lump sum cash payment or an annuity. If you want in installments, company will give you in installments. That is known as annuity. Annuity means per annum, annually, annuity, annually. So annually is nothing but per annum. Okay, year wise, yearly, company can provide you. Okay, if you want, if at all family wants, they can convert the lump sum amount into annual amount. Okay. See, in life insurance, there is one more benefit that is given to the beneficiary, and that is known as cash values. It is nothing but the bonus that is given to you at the time of maturity, okay, which may be taken by the insured if the policy is surrendered or which may be borrowed against life insurance policies. Suppose now cash value is added, accumulated in your account. Cash value every year it is added in your account. Okay, and now if you surrender your policy, suppose after 10 years your policy period is 20 years, but suppose after 10 years you are not eligible. Sorry, the word eligible is not correct. You are not willing and ready to pay the amount of premium. Okay, you cannot afford rather. Now, the premium that is to be paid to insurance company, you cannot afford that. आप भर ही नहीं पा रहे हैं, आपके पॉकेट में भी उतना बचता ही नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं आपके। ठीक है, तो तो उसकी वजह से आपने पॉलिसी सरेंडर कर दिया। सरेंडर मीन्स मैच्योरिटी डेट से पहले ही आपने कंपनी को कह दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू पे प्रीमियम, क्लोज माई पॉलिसी, close my policy. So that is known as surrender. Okay, so while surrender or at the maturity date,
I mean, not at the maturity date, because at the maturity date you will receive all the amount. Sorry, not at the maturity date, but during the period when you surrender the policy or before that, anytime you can withdraw the cash value. Okay, according to the terms and conditions of life insurance policy that you have taken. Okay, if you are need in cash, so you can withdraw this cash value. Okay, or you can borrow also. You can borrow the amount of cash value against this life insurance policy. Some policies such as annuities, endowment policies are financial instruments. See, there are types of, we will have a discussion uh, later on, uh, what types, there are types of life insurance policies. So in that, endowment policy, whole life insurance policy comes into picture. Now, अभी आपको इतना इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या, लाइफ इंश्योरेंस होता क्या. ओके, नेक्स्ट इज होम इंश्योरेंस. अब ये होम इंश्योरेंस क्या होता है, देखो आप ना जब एक घर के डैमेज डिस्ट्रक्शन का कवरेज लेते हैं, जब घर को डैमेज हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, फिनेंशियल लॉस हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए, कवर करने के लिए आप होम इंश्योरेंस खरीदते हैं. ठीक है, तो होम इंश्योरेंस आपको क्या प्रोवाइड करता है, कवरेज, मतलब रिस्क को कवर करता है, रिस्क को ठीक करता है, मिनिमाइज करता है. देखो कभी भी किसी भी रिस्क को ना हम जीरो तक नहीं लेके आ सकते. रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी किसी भी रिस्क को हम जीरो तक नहीं लेके आ सकते, बिल्कुल नलीफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते. तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट एटलीस्ट वी कैन डू इज मिनिमाइज. मतलब आपका घर तो, समझो मेरा घर जल गया, समझो एग्जाम्पल, ठीक है ना, अब जल तो गया ना, लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बचा सकती हूँ उसको. ठीक है, फायर ब्रिगेड बुलाकर उसको जितना बाकी है उतना सेव कर सकती हूँ. लेकिन अब तो आग लग चुकी, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना. जो जल गई प्रॉपर्टी वो तो जल गई, बाकी की तो बचा सकते हैं. तो उसे कहते हैं कवरेज. अब नुकसान तो हो गया आपका, ठीक है, नुकसान तो हो गया, अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं. अब आप वो तो नहीं कर, बचा तो नहीं सकते अर्थक्वेक से अपने घर को उठाकर कहीं और लेके तो नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, होम एंड होम, आपका घर जो हाउस है, आपका हाउस प्रॉपर्टी है, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेके थोड़ी जा सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, यहाँ से उठाकर लेके चलते कहीं और, नहीं कर सकते हैं ना. तो अब तो नुकसान हो गया, अब उसे मिनिमाइज कैसे करें, तो मिनिमाइज करने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं. तो उसमें क्या होता है, रिस्क शेयर किया जाता है. बहुत सारे लोग आते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, अब कंपनी के पास बहुत सारा अमाउंट आ जाता है, उसमें से कुछ पोर्शन आपको निकाल कर आपके रिस्क को मिटिगेट करती है. मिटिगेट का मतलब होता है मिनिमाइज करना. ठीक है, थोड़ा रिस्क आप उठाते हो, थोड़ा कंपनी उठाती है. ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको, क्लियर है सबको. यस मैम. ठीक है ना. यस मैम. तो बस मैंने बता ही दिया एक्चुअली होम इंश्योरेंस क्या होता है, पर फिर भी आपको अगर चाहिए तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं रीड कर लेती हूँ. देखो, इट प्रोवाइड्स द कवरेज, आपको कवर देता है. जैसे घर पे एक शेल्टर कैसे होता है, आपको बारिश और धूप से बचाता है, वैसे होम इंश्योरेंस भी आपको कवर देता है. किससे कवर करता है आपको, डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स होम. आपके घर का जो कुछ फ्यूचर में अगर डैमेज हो गया, आग लग जाना, डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ टूट फूट जाना, इन सम जोग्राफिकल एरियाज पॉलिसी में इंक्लूड. अब कोई जोग्राफिकल एरियाज ऐसी होती हैं जिसमें अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्लड, जैसे आप है ना, जैसे मरीन ड्राइव देखा है आपने, मरीन ड्राइव्स, अब मरीन ड्राइव पे आप देखोगे ना, घर है ना बिल्कुल पानी के आसपास है, वो ओशन, वो जो बना हुआ है वो पूरा बहुत बड़ा जो बना हुआ है, अ, समुद्र बना हुआ है, उसको आप देखोगे तो वो उसके आसपास घर बने हुए हैं. अब उन, देखो जब फ्लड आएगा ना तो चांसेस ज्यादा है कि उनके घर पहले डूबेंगे. नहीं समझ रहे आपको मैं क्या बोल रही हूँ, इज इट क्लियर. तो मैं आगे बढ़ूं एग्जाम्पल के साथ. यस मैम, क्लियर. हाँ, तो अब उनके घर का चांसेस ज्यादा है ना, पहला है ना,
अब अपन लोग दूर रहते हैं, ठीक है, हम लोग उनके उनके जो वो जो पानी का समुद्र है, एरिया है, वहां से हम बहुत दूर रहते हैं। ऑफ कोर्स फ्लड आने के चांसेस हैं हमारी एरिया में भी, पर बहुत कम, ठीक है, और बहुत देर से, शायद तब तक वो फ्लड खुद ही मिनिमाइज हो जाए, खुद ही कम हो जाए और बंद हो जाए, ठीक है, या फिर हम खुद ही प्रिकॉशंस ले लें, ठीक है। तो मेरे बोलने का, ठीक है, घर को तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें तो हम लोग खुद ही लेकर शिफ्ट हो सकते हैं ना। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अभी जैसे फ्लड आने के चांसेस ऐसी जोग्राफिकल एरियाज में ज़्यादा होते हैं जो जो ऐसे ओशंस के, समुद्र के एरिया में बिल्कुल आसपास रहते हैं वो घर, ठीक है, बिल्ड किए गए हो वो घर, उन वो एरियाज में चांसेस ज़्यादा हैं फ्लड आने के, और जल्दी हैं, क्विक चांसेस होते हैं उधर, ठीक है। तो ऐसी जोग्राफिकल एरियाज में आप अगर पॉलिसी खरीद रहे हो और आपका घर ऐसी एरिया में आता है जहाँ फ्लड, अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये रिस्क कवर करके देते हैं, पॉलिसी में इंक्लूड करके देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन कुछ पॉलिसीज में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड होता है। क्यों एक्सक्लूड क्यों होता है, निकाला क्यों जाता है ये फ्लड और अर्थक्वेक के रिलेटेड कैलामिटीज को, रिस्क को क्यों निकाला जाता है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है। अब हमारी एरिया ऐसी है जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस कम है। आई बात समझ में। मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज टिपिकली ओनर ही भरता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस ओनर की होती है, पॉलिसी होल्डर की, आई मीन कंपनी की नहीं होती है। पॉलिसी में इंक्लूड क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री, मतलब जो घर में जो आपने चीज़ें रखी हुई हैं, स्टॉक भर के रखा है, एंड दिस कैन बी बॉट एज सेपरेट, उसे अलग से हम खरीद सकते हैं, पॉलिसी में इंक्लूड करवा सकते हैं कि घर के साथ मेरे घर की चीज़ों का भी नुकसान हो गया, तो उसे अलग से इंक्लूड करवा सकते हैं। देखो जितनी ज़्यादा स्कीम में जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करवाते हैं ना, उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है। तो कंपनी भी तो अर्न करेगी ना, आपको इतना ज़्यादा कवरेज दे रही है तो। पॉलिसी स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु रेंट हाउसिंग। अब अगर आपने घर को रेंट पे कर दिया, घर को रेंट पे लगा दिया, तो ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी थोड़ी महंगी हो जाती है। क्यों? देखो हम अपने घर को बहुत अच्छे से चलाते हैं, लेकिन किसी और के घर में रहने जाते हैं तो हम घर का उतना ध्यान नहीं देते हैं ना, है ना। किसी और का घर है, मुझे क्या लेना देना, दीवार टूट रही है तो मुझे क्या लेना देना, वो बनवा देंगे खुद ही। हम ऐसे सोचते हैं, हमारी टेंडेंसी ऐसे बन जाती है। तो जो रेंटेड हाउस होते हैं ना, उसमें रिस्क ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोग उतना ख्याल नहीं रखते हैं जितना हम लोग अपने घर का रखेंगे। आई बात समझ में। देयरफॉर पीपल स्पेसिफिकली, जो पॉलिसी स्पेसिफिकली दी जाती है, जो रेंटेड हाउस की होती है वो अलग से दी जाती है, मतलब स्पेसिफिकली मतलब स्पेशली अलग से दी जाती है, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है जनरल पॉलिसी में, ठीक है, आपको अलग से खरीदनी पड़ती है। इन सम कंट्रीज इंश्योरेंस आफ्टर अ पैकेज विच में इंक्लूड लाइबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंजरीज एंड प्रॉपर्टी डैमेज। समझो आपकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, मेरे घर का प्रॉपर्टी आपकी वजह से डैमेज हो गया, तो अब ये जो क्लॉज है ना, ये जो क्लॉज है, ये जो कंडीशन है, ये भी पॉलिसी में डिस्क्लोज होगी, पर उसके लिए मुझे प्रीमियम एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। अगर मुझे ये भी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन की वजह से मेरे घर को नुकसान हो गया, पड़ोसी की वजह से मेरे घर को नुकसान हो गया, उसके घर में लीकेज था और इसलिए मेरे घर पे पानी आने लगा, उसके घर की वजह से मेरे घर को डैमेज होने लगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई और मेरे घर का नुकसान हुआ, तो थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई इंजरी होता ना, उसका पैसा भी कर कंपनी आपको भर के देगी, अगर ये क्लॉज इंक्लूड होगा तो पॉलिसी में। तो कुछ कंट्री में ये पैकेज में दिया जाता है, कुछ कंट्रीज में नहीं दिया जाता है, आपको स्पेशली खरीदना पड़ता है, ठीक है। ये वो बताने की ट्राई कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कभी आप देखो, हेल्थ इंश्योरेंस कैन रीइम्बर्स, रीइम्बर्स मतलब भर के देना। फर्स्ट यू हैव टू पे द एक्सपेंसेस related to the illness, related to the injury, related to any accident, ठीक है, that may happen। अच्छा, किसको भरते हैं हम ये एक्सपेंसेस, केयर प्रोवाइडर मतलब मेडिकल हॉस्पिटल्स। अगर हमने ये एक्सपेंसेस भरे तो उसे कंपनी हमको रीइम्बर्स करके देती है, उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। रीइम्बर्स का मतलब पहले आपने खर्चा किया, समझो 2 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, सॉरी ऑपरेशन करवाया 2 लाख रुपए का, ऑपरेशन का खर्चा कितना हुआ, 2 लाख रुपए का,
ठीक है, हॉस्पिटल में आप भर के आए, अब आप सारे पेपर्स, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के पेपर्स, डिस्चार्ज के पेपर्स, कब एडमिट हुए थे, कौन सा ऑपरेशन कराया, कौन से हॉस्पिटल से करवाया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी उसको स्क्रूटिनाइज करती है, चेक करती है वाकई में ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर को कॉल करके चेक करेंगे, हॉस्पिटल में कॉल करके चेक करेंगे, सारा बिल उनसे निकलवाएंगे कि अच्छा कितना कितना खर्चा हुआ था, वाकई में 2 लाख हुआ था कि नहीं हुआ था। अब ये कंपनी पूरा खर्चा निकालती है, सारा कुछ पहले चेक करती है, ओवरव्यू ले लेती है। ठीक है, अब आपको उसका खर्चा भर के देती है। दैट मीन्स पहले आपने अपनी जेब से कितना निकाला, 2 लाख, अब कंपनी की मर्जी है, वो आपको 1,80,000 भर के देते हैं कि 1,50,000 भर के देते हैं। भर के देना इज नोन एज रीएम्बर्समेंट। ओके, वो आपका खर्चा पूरा वापस करती है, उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। द कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज डिडक्टेबल टू द पेयर एंड बेनिफिट्स रिसीव्ड आर टैक्स फ्री। जो भी आपको अमाउंट वापस मिलता है ना, वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज दैट पेज फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस। मतलब आपने अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस किए अपने ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, अपने चिल्ड्रन के ऊपर, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर स्पाउस, ऐसे करके आपकी फैमिली के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, सर्जिकल, सर्जिकल मीन्स हम सर्जिकल टेबल पे होते हैं जब ऑपरेशन करा रहे होते हैं, उसे कहते हैं सर्जिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड। अगर मैंने ऐसे एक्सपेंसेस इनकर किए तब जाके मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा रिकवर होके मिलता है। इट इज ऑफन इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयज बेनिफिट पैकेजेस ऑल्सो एज अ एंटाइसिंग क्वालिटी एम्प्लॉयज, मीन्स ऑफ एंटाइसिंग क्वालिटी एम्प्लॉयज। बहुत सारे एम्प्लॉयज को ना फ्री में ये पैकेज दिया जाता है, मतलब आपको सैलरी के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। इसका दूसरा नाम होता है मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब कभी बीमार पड़ जाते हैं हम, तो कभी कुछ मेडिकल खर्चा हो गया हमारा, तो वो पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉयर, पहले तो आप खर्चा करते हो, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर आपको भर के देता है। अब एम्प्लॉयर क्यों भर के देगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर को भर के देती है। सो देर इज ट्राई पार्टी, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसमें, इंश्योरेंस कंपनी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मुझे कौन भर के देगा, मैं एम्प्लॉई हूँ, मुझे कौन भर के देगा, एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर भी अपने जेब से नहीं निकालते, वो भी इंश्योरेंस कंपनी से भर के देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। इसे समझ कहते रहे हैं। हैं, यस, इसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। देखो बहुत बार है ना, बहुत सारे लोग चलते चलते ऐसे बीमार पड़ जाते हैं कि वो डिसेबल हो जाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं, या पैरालाइज्ड हो जाते हैं, एक साइड नहीं चल रहा, एक हाथ नहीं चल रहा। सो दैट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस आपको दिया जाता है, क्योंकि अब वो चल फिर ही नहीं सकता, और वो फैमिली अर्नर था, पूरी फैमिली को चला रहा था, लेकिन अब वो चल फिर नहीं सक रहा, तो कमाएगा कैसे? सो ऐसे लोगों का डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लिया जाता है। मतलब अब हर महीने की इनकम कौन भरी जाए, किसके थ्रू भरी जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी मीन्स आप अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपकी फैक्ट्री है वहाँ पर, ठीक है, और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें आपका ऑफिस है। देखो आजकल विक्रोली साइड आप देखो कितने सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही, जहाँ पे सिर्फ ऑफिसेज है, वहाँ पर वर्क प्लेस है वो, वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, रहने जाते हैं। चलो रेसिडेंशियल एरिया भी पकड़ लो, जैसे होम इंश्योरेंस हो गया, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं आ गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपने अपना शॉप का इंश्योरेंस ले लिया, कोई भी प्रॉपर्टी पकड़ लो आप, सिर्फ होम नहीं, होम सिर्फ होम का होता है, प्रॉपर्टी में सब आ गया, होम, लैंड, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके रिलेटेड क्या आपको दिया जाता है, रिस्क का कवरेज दिया जाता है। क्या रिस्क हो सकता है, फायर लग जाना, चोरी हो जाना, आपकी प्रॉपर्टी में ज्वेलरी भी काउंट होती है, ज्वेलरी आपकी प्रॉपर्टी है ना, जैसे घर आपकी प्रॉपर्टी, देखो घर चोरी नहीं हो सकता, लेकिन घर की चीजें तो चोरी हो सकती हैं। आया समझ में? तो कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके नाम की हो, प्रॉपर्टी हो आपकी, वो अगर चोरी हो जाए, फायर लग जाए, वेदर डैमेज, बहुत बारिश आ गई और लोगों के घर डूब गए, वेदर डैमेज, वेदर मीन्स वेदर चेंज हो गया और बहुत ज्यादा बारिश आ गई, तूफान आ गया और घर टूट गए, घर खराब हो गए,
पानी चढ़ गया घर पे, तो दैट वे, दैट काइंड ऑफ वेदर डैमेज से आपको कवरेज मिलता है। देखो लिखा हुआ है, फायर इंश्योरेंस होता है, फ्लड इंश्योरेंस होता है, अर्थक्वेक इंश्योरेंस, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है। इनलैंड मेराइन इंश्योरेंस, इनलैंड मेराइन इंश्योरेंस क्या होता है, अपनी कंट्री में आपने, इनलैंड अपनी कंट्री, इन आउट नहीं, इन अपनी कंट्री के बाउंड्रीज में आपने ना गुड्स को बेचना है, आप है ना मेराइन इंश्योरेंस करवा लेते हो। मतलब आपने अपने गुड्स को महाराष्ट्र से केरला बेचना है। ठीक है, तो आपने क्या यूज किया, क्या यूज किया, वाटरवेज के थ्रू आपने सोचा आप मैंने अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। तो वाटरवेज के थ्रू अगर आपके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इंडिया में, इनलैंड, तो आपने क्या ले लिया, इनलैंड मेराइन इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फायर इंश्योरेंस। यस, सो नेक्स्ट द प्रॉपर्टी, सॉरी फायर इंश्योरेंस, नेक्स्ट वन। फायर इंश्योरेंस ये जब किसी चीज को, आपकी प्रॉपर्टी को जब डिस्ट्रक्शन हो जाए फायर के थ्रू, तब लिया जाता है फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट है आपका एविएशन इंश्योरेंस। एविएशन का मतलब क्या होता है, जब है ना गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट करते हो एयरवे के थ्रू, एयरवे मतलब एरोप्लेन। ठीक है, प्लेन, प्लेन में आप जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर गुड्स ही नहीं, सिर्फ गुड्स नहीं, पैसेंजर का भी। मतलब जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो अगर कुछ उस टाइम पे हो गया, ठीक है, कुछ उस टाइम पे हो गया, तो जो भी नुकसान होगा वो एविएशन इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका बॉयलर इंश्योरेंस। बॉयलर इंश्योरेंस क्या होता है, इट इज नोन एज बॉयलर एंड मशीनरी इंश्योरेंस। जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, अगर वो चलते चलते ब्रेक डाउन हो जाए, एक्सीडेंटली उसका फिजिकल डैमेज हो जाए, ठीक है, मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का, बड़ी बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स का, उसे कहते हैं बॉयलर इंश्योरेंस। फिजिकल डैमेज हो जाना, मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, अब ये फार्मर्स खरीदते हैं। ऑफ कोर्स क्रॉप के नाम से ही समझ में आता है ये कौन खरीदता है, क्रॉप इंश्योरेंस कौन खरीदता है, फार्मर्स। farmers. यस, टू रिड्यूस और मैनेज, सॉरी, वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विथ ग्रुपिंग क्रॉप्स। मतलब बहुत एक एक क्रॉप की वजह से दूसरा क्रॉप भी खराब हो जाना, है ना, ऐसे होता है ना। तो उसकी वजह से सारे क्रॉप्स मेरे अगर खराब होने लगे, या फिर ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं पड़ रही है, या फ्लड आ गई, बहुत बारिश पड़ गई, वेदर चेंजेस, हेल मतलब स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया। ठीक है, हेल मतलब स्टॉर्म, तूफान आ जाना, इंसेक्ट्स, कभी कभी देखो आप, इंसेक्ट्स क्रॉप को खा जाते हैं, ठीक है, डैमेज करके जाते हैं, तो वो क्रॉप बेचने लायक नहीं होता है, डैमेज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको क्या मिलता है, क्रॉप इंश्योरेंस। नेक्स्ट होता है फ्लड इंश्योरेंस। अब फ्लड से नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब फ्लड की वजह से अगर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, ठीक है, तो आपको फ्लड इंश्योरेंस लेना होता है। मेराइन इंश्योरेंस, ये आपको पता है, जब आप कार्गो, मेराइन इंश्योरेंस मीन्स मेराइन कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं इसे। अगर ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका लॉस और डैमेज हो गया वेसल को, वेसल मतलब शिप, शिप्स जो होती है ना, शिप्स जिसमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं वेसल एट सी और इन इनलैंड वाटरवेज, और कार्गो इन ट्रांजिट। कार्गो इन ट्रांजिट मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं, जा रहे हैं, इन ट्रांजिट, अभी अभी जा रहे हैं, पहुंचे नहीं है गुड्स, रिगार्डलेस ऑफ मेथड ऑफ ट्रांजिट, कैसे जा रहे हैं, कितने दिन लगेंगे, कौन सी शिप आपने खरीदी है, वो एक, वो रिगार्डलेस है, मतलब उसका मैटर नहीं है, लेकिन आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक थ्रू थ्रू शिप्स। तो अगर उस वेसल को डैमेज हो गया, उसकी वजह से गुड्स को डैमेज हो गया, तो उसके लिए हम लेते हैं कार्गो इंश्योरेंस, मतलब मेराइन इंश्योरेंस। नेक्स्ट है आपका नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस। नेचुरल डिजास्टर मीन्स अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब अगर कुछ हो रहा है, तो ये सब आता है नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसका हम लेते हैं नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस।
अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा कमेटी। देखो मल्होत्रा कमेटी बिठाई गई थी। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जनवरी 1994। अभी क्यों जनवरी 1994 में ये कमेटी ने सबमिट की थी रिपोर्ट? अब क्यों ये कमेटी बिठाई गई थी? क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो इंश्योरेंस कंपनी की ठीक करनी थी, लूप होल्स थे जिन्हें ठीक करने थे, इसीलिए मल्होत्रा कमेटी बिठाई गई थी। अभी कब हुआ था? जनवरी 1994 में, ठीक है, 1994 में हुआ था। कुछ रिकमेंडेशंस आई थी वहां से, कुछ सजेशंस आई थी दैट प्राइवेट इंश्योरेंस जो है ना, जो प्राइवेट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, उनको अभी से अलाउ किया जाए कि वो गवर्नमेंट कंपनीज के साथ साथ बिजनेस करें। पहले सिर्फ बिजनेस किसका था? गवर्नमेंट कंपनी चला सकती थी लाइफ इंश्योरेंस को। फिर 1994 में सजेशन डाली गई कि अब आप प्राइवेट इंश्योरर्स को भी मार्केट में आने का चांस दीजिए। जैसे अपना ये बिरला सन लाइफ है, एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस है, ये सब है ना प्राइवेट ओनर्स हैं, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये पहले अलाउ नहीं था, पहले सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज होती थी लाइफ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में। लेकिन अब प्राइवेट इंश्योरेंस भी प्राइवेटली ओपन किया जा सकता है, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वर एज फॉलोज। 3 रिकमेंडेशन थे अगर आप देखोगे तो। ये देखो, गवर्नमेंट स्टेक इन द इंश्योरेंस कंपनी टू बी ब्रॉट डाउन टू 50%। मतलब पहले सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज होती थी, अब उनको 50% कम करके बाकी का 50% आप प्राइवेट कंपनीज को भी चांस दीजिए कि वो मार्केट में एंटर कर सके। आप कंप्लीटली नहीं छोड़ दें, गवर्नमेंट को बोला गया कि आप कंप्लीटली अपना स्टेक, अपना राइट नहीं छोड़ दें, लेकिन 50% उनको भी चांस दिया जाए। ओके, गवर्नमेंट शुड टेक ओवर द होल्डिंग ऑफ GIC एंड इट्स सब्सिडरीज। GIC मीन्स जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट को बोला गया आप ध्यान दीजिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे और उनकी सब्सिडरीज पे। लाइफ इंश्योरेंस के लिए थोड़ा प्राइवेट इंश्योरर्स को चांस दीजिए कि वो भी मार्केट में आकर ओपन कर सकें। ऑल द कंपनी शुड बी गिवन ग्रेट फ्रीडम टू ऑपरेट। सारी कंपनीज को फ्रीडम दिया जाए कि आप भी इंश्योरेंस कंपनी में ओपन करके बिजनेस कर सकते हैं। आया समझ में? ये 3 मेजर सजेशन, रिकमेंडेशन का मतलब है सजेशन लाई गई। अच्छा, अब प्राइवेट कंपनीज, अब है ना, उन्होंने कंपटीशन कैसे रखा देखो। प्राइवेट कंपनीज जो हैं, उन अगर आप ओपन करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी, तो आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए ₹1 बिलियन टू एंटर इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अगर आपको इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो आपको मिनिमम कैपिटल 1 बिलियन होना चाहिए। अच्छा, सेकंड, नो कंपनी शुड बी अलाउड टू डील इन बोथ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आज तक चलता है। एक ही कंपनी दोनों प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकती है, लाइफ एंड नॉन लाइफ। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के आप नहीं बेच सकते। और अगर आप जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। तो आपको कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा। फिर वो कंपनी का नाम चेंज करके 2 कंपनीज ओपन करते तो चलता है, लेकिन एक ही कंपनी के नाम पे आप दोनों प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं बेच सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब पॉलिसीज, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है, पॉलिसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉरेन कंपनीज भी अलाउ की जाएं, लेकिन इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके। पहले देखो फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं करते थे इंडिया में ओपन करने के लिए, लेकिन अब आप देखोगे तो फॉरेन कंपनीज के साथ अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई क्या है? इंडियन कंपनी। लोम्बार्ड ये ना आउटसाइड कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। तो ये जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये दोनों मिलके कंबाइन होके कोलैबोरेट होकर इंडिया में ओपन हुए। क्यों? क्योंकि 1994 में मल्होत्रा कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन आया कि फॉरेन कंपनीज को भी चांस दिया जाए कि इंडिया में ओपन कर सकते हैं वो अपना ब्रांच, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि इंडिया की कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेट होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नेक्स्ट है आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो पोस्ट ऑफिस का जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो कंटिन्यू रखें, ऐसा रिकमेंडेशन आया।
Only one state level life insurance company should be allowed to operate in each state. मतलब आप अगर स्टेट वाइज ओपन कर रहे हैं तो स्टेट में एक ही ओपन कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस. ऐसा पहले आया था, अभी तो खैर चेंजेस हो गई हैं. ठीक है. इंश्योरेंस एक्ट शुड बी चेंज्ड. पहले इंश्योरेंस एक्ट नहीं होता था, देखो अब इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो बनाया गया ना, इसके बाद बनाया गया. मतलब पहले भी था वो, पर उसमें चेंजेस लाने के लिए बोले गए. नेक्स्ट, एन इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी शुड बी सेट अप ऑन द लाइंस ऑफ सेबी. एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, जैसे बैंक का रेगुलेटरी बॉडी है ना आरबीआई, वैसे इंश्योरेंस का भी रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए. तब तो आईआरडीए रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया, आईआरडीए. ठीक है. अच्छा, आपका नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? एफए मैम. एफए का मैम. अच्छा, प्रिया मैम आ जाए ना तो मुझे बता देना, तब तक मैं ओके मैम. कंटिन्यू करती हूँ. ठीक है. ओके मैम. आप मुझे बीच में स्टॉप करके बता देना, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. मुझे ना 2-3 मिनट लगेंगे बस. अच्छा, नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस शुड बी मेड इंडिपेंडेंट. कंट्रोलर कौन होता है? जो इंश्योरेंस की रेगुलेशंस देखते हैं. मतलब इंश्योरेंस बिजनेस ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है, इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, उन्हें वो नजर रखने वाला कंट्रोलर होता है. तो कंट्रोलर को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, मतलब वो मतलब इंडिपेंडेंट बनाया जाए, मतलब किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन ना ले, ऐसा बोल रहे हैं वो, इंडिपेंडेंट बनाया जाए. ठीक है. इन्वेस्टमेंट. अब ये सारे ना पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं किसके? मल्होत्रा रिकमेंडेशन कमेटी के. पहले तो हमने 3 रिकमेंडेशन पढ़े, फिर हमने पढ़ा कंपटीशन, फिर हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट में क्या है? मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट. अगर एलआईसी लाइफ फंड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 75 to 50%. हमने ये ऊपर पढ़ा कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, उसको 75 से 50% तक नीचे लाया जाए, सो दैट प्राइवेट ओनर्स को भी चांस मिले मार्केट में एंटर होने का. ये ऊपर वाली लाइन सेम है. एंड जीआईसी के बारे में क्या है? जनरल इंश्योरेंस एंड सब्सिडरीज आर नॉट टू होल्ड मोर देन 5% ऑफ एनी कंपनी. मतलब आप कोई भी कंपनी का 5% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते जीआईसी और उसकी सब्सिडरी का स्टॉक. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, कस्टमर सर्विस. ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूं. मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन में आया कि सबसे ज्यादा हमारा कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए. मतलब कस्टमर्स क्या चाहते हैं वैसी पॉलिसीज हम उनको टेलर मेड, यानी कि टेलर मेड मतलब जैसे वो चाहते हैं वैसे हम पॉलिसीज उनको प्रोवाइड करें. ये लिखा हुआ है इसमें. ठीक है. और अगर कुछ उनका नुकसान हो गया तो उनका जो पेमेंट है वो 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब महीने के अंदर. और अगर वो प्रीमियम भी टाइम पे नहीं भर रहे तो आप उनसे इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट के नाम पे पेनल्टी लगा सकते हैं, और वो भी 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए. कंप्यूटराइज सिस्टम लाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने रिकमेंडेशन डाला कि कंप्यूटराइज सिस्टम लाना चाहिए जिसमें हम लोग ऑपरेट करें और अपना सिस्टम को अपडेट करें टेक्नोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू. ठीक है. अच्छा, अब ये ना ध्यान से देखो, ये कमेटी किसके, कौन कौन चेयरमैन था इस कमेटी का? देखो, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम proposed the opening of the insurance industry to private sector including multinational companies. अब ये थे जिन्होंने, ये चेयरमैन थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट. फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम proposed the opening of insurance company to private sector including multinational companies. मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को भी चांस दिया जाए और मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब बाहर फॉरेन की कंपनीज को भी चांस दिया जाए कि वो इंडिया में ब्रांचेस ओपन कर सकें. पर मैंने आपको कंडीशन बताई, वो इंडिया के साथ मिलकर, इंडिया की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट होकर ओपन कर सकते हैं. ये कंडीशन है, ये शर्त रखी गई. ठीक है. और कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए, ऐसी इन लोगों ने ये रिकमेंडेशंस लाई. तो रिकमेंडेशन में हमने पॉइंट्स पढ़ी, ऐसे समझो ये पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज लिखने का. ठीक है. पहला 3 रिकमेंडेशंस, उसके बाद कंपटीशन में पॉइंट्स पढ़ी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड देन कस्टमर सर्विस. और ये किसके अंडर में ये रिपोर्ट बनाई गई थी? कौन चेयरमैन थे? फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम. ठीक है. यस मैम.
So finally we are done with the chapter. ठीक है, ये देखो ये तो सिर्फ नाम दिए हुए हैं। आप मुझे फटाक से बताइए आपने क्या क्या निकाला है, कौन सी पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज है, होमवर्क किया होगा आपने। सो टेल मी पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर में नहीं तो डिस्कस करें, अगर प्रिया मैम आ गए हैं तो। आ गए मैम, आ गए। आ गए ना आ गए मैम, मैम। आ गए। यस मैम। तो हम लोग अपना होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ओके करेंगे, मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, मैम। ओके मैम। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। बाय मैम। बाय बाय मैम। मैम। मतलब अभी प्रिया मैम, प्रिया आप रूम नंबर 41 कोई को होस्ट लिखा हुआ है ना, उस वहीं पे ही करती हूँ, ठीक है। मुझे होस्ट बना। हाँ